दिल्ली में इंडिया एनर्जी कॉन्क्लेव आईएससी 2022 में ग्लोबल एनर्जी ट्रांजिशन टेंडर्स सस्टेनेबल एनर्जी ऑप्शंस फॉर इंडिया टारगेट कार्बन न्यूट्रल 2070 पर विचार विमर्श किया गया। इस मौके पर आपको बता दें कि रविशंकर सुंदरसन द्वारा लिखित और राजीव माथुर द्वारा सह लेखक द वर्ल्ड ऑफ liquefied natural gas market trends presenting cities context and negotiation and new market प्राइडेशन नामक पुस्तक का अनावरण भी हुआ, जिसकी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। दिल्ली के महपालपुर स्थित रेडिसन होटल के अंदर, रेडिसन ब्लू के अंदर इस कार्यक्रम को रखा गया। 2 दिन तक ये जो कॉन्क्लेव है ये चलेगा। इस कॉन्क्लेव में कई सारी कंपनियां, तकरीबन 150 से ज्यादा कंपनियां और 50 जो स्पीकर हैं वो अपनी बातों को यहां पर रखेंगे। 2070 में किस तरीके से जीरो कार्बन हासिल करके सीओपी 27 लक्ष्यों का ध्यान में रखते हुए विशेषज्ञों ने ऊर्जा सुरक्षा, समर्थ और स्थिरता के लिए वैकल्पिक स्रोतों के साथ मजबूत ऊर्जा मिश्रण पर जोर दिया है। इंडिया एनर्जी कॉन्क्लेव में आपको बता दें कि बोलते हुए विशेषज्ञों और शीर्षक ऊर्जा पेशेवरों ने कहा कि भारत सहित सरकार और देशों में महसूस किया गया है कि वर्तमान भू राजनीतिक स्थिति में नवीकरण ऊर्जा के माध्यम से ऊर्जा सुरक्षा प्राप्त की जा सकती है। उनके अनुसार ऊर्जा सुरक्षा, समर्थ और स्थिरता के लिए पारंपरिक नवीकरण प्राकृतिक गैस, बायोगैस और हाइड्रोजन के बीच संतुलन बनाए रखना होगा। विशेषज्ञों का विचार है कि भारत की ऊर्जा त्रिलोम सुरक्षा, समर्थ और स्थिरता से निपटने के लिए हरित ऊर्जा क्षेत्र में 400 बिलियन से अधिक का निवेश कर चुकी है। अब देखना होगा कि जिस तरीके से जो सबमिट किया गया कॉन्क्लेव में जो विचार विमर्श अलग अलग कंपनियों के द्वारा किया जा रहा है, उससे आने वाले दिनों में 2070 तक का ये लक्ष्य लिया गया कि 2070 में कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है उससे अब जो सारी चीजें हैं वो चलेंगी। क्या कहा विशेषज्ञों ने, आइए वो सुनाते हैं कि किस तरीके से अपनी बातों को यहाँ पर रखा। कैमरामैन राहुल के साथ नीरज अवस्थी की रिपोर्ट। And coal use and end deforestation. But unfortunately, the best laid plans sometimes can go awry, and this year that was a result of geopolitical events. So geopolitics have now shifted focus away from sustainability to energy security, and by geopolitics, of course, I'm referring to we've had to experience some adverse consequences, and contrary to what was agreed in COP26, we've actually seen an increase in coal use and no significant reduction in emissions and continued deforestation. So this is certainly concerning and this needs to be addressed. But on the flip side, with the geopolitical developments, there have been some very positive consequences, and that's been in the form of substantial progress in renewables. And this is because governments and countries are now realizing that energy security can be achieved through alternatives as well. There's been substantial progress in EV deployment and decarbonization solutions. When it comes to decarbonization solutions, again, this is where countries and governments are realizing that they can stick to a fossil fuel-driven energy security policy, but then deploy decarbonization solutions in order to reduce emissions. So again, this then becomes a very important element in the energy security for countries. So this brings me to this energy trilemma or trilemma that everybody has been talking about. And this is where countries or governments now are focusing on how to balance, or rather how to achieve balance within the energy trilemma. And what this essentially means is that a balance. India would still be fossil fuel dominant country with 62% coming from contribution from the primary resource. So these are certain other things that I just wanted to show about this. But it's a good thing to see that the region's enormous 2- and 3-wheeler vehicles fleet will transition almost entirely to electric before 2040. That's the change that we are experiencing right now, and this is going to be happening more rapidly now coming time. Also, some of the trends, this is a BP study pertaining to India. We see that the dependence on coal reduction would only happen late 2020s. So this is the trend that is there. And if there are two scenarios, one is when it is accelerated attempt to really reduce emissions, or business as usual. There is, of course, the installed wind.
किस लिए रखा गया, पर्पज क्या और किस तरीके से सपोर्ट मिल रहा है इसमें जो अलग अलग सेक्टर की जो कंपनियां हैं? देखिए, ये है इंडिया एनर्जी कॉन्क्लेव, जिसमें ऑयल एंड गैस कंपनीज, इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनीज, मेन प्रोड्यूसर्स ऑफ ऑयल एंड गैस, consumers of oil and gas, equipment manufacturers, they are participating in this conclave and discuss this, that what are the changes that are happening globally on the usage of energy. And there is a tremendous pressure. How do you take your projects in a way which can reduce the emissions of carbon dioxide and address the issues of the climate change? So this is our focus. The energy transition processes that are being experienced worldwide are being discussed in the Indian context. What all is relevant for India, what can be done to achieve the goal of India that is given by the Prime Minister, that we should be carbon neutral by 2070. It's not an easy task. Big companies have to change their ways of working. The people have to change their ways of using energy. So there are many things that need to be brought in. These are the issues that are being discussed. Also, we are going to discuss what are the new fuels, energy sources which are cleaner, which are better and good for the mankind and for India, like the renewables or the hydrogen or the biofuels or the synthetic fuels which are coming up. At the same time, how we can capture carbon dioxide, we can store and use it for developing, producing some useful products. So these are the very important areas from energy sector that are being discussed here. बायोगैस की अगर बात करें तो बायो ऑयल पहले यूज हो रहा था, अब किस तरीके से आप लोग कार्बन की तरफ कार्बन गैस की बात करें, किस तरीके से रूरल ग्रामीण क्षेत्रों में कैसे पहुंचा जाए, क्योंकि मेट्रो सिटी में तो है, वहाँ पर कंपनियों में पहुंच जाएंगे, जो रूरल एरिया वहाँ पर किस तरीके से? देखिए, बायोगैस का काफ़ी रूरल एरिया में प्रोडक्शन होता है. नए प्रोजेक्ट्स लगे हैं. गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने नई स्कीम दी है कि कलेक्टिवली सब इकट्ठे होकर गांव में बायोगैस बना सकते हैं, विच इज़ मीथेन लाइक एनी अदर गैस. नो, उस गैस को जो हमारे प्रोसेसेस हैं, पॉलिसी हैं, उसमें बाईबैक भी है और उसको मेन स्ट्रीम में भी ला के यूज़ कर सकते हैं. तो रूरल एरिया के लिए बड़ी अच्छी ये अपॉर्चुनिटी है जो पॉलिसी है गवर्नमेंट इंडिया की. वो लॉन्च किया गया है, क्या इन्फॉर्मेशन? देखिए, एलएनजी गैस के यूसेज पे, उनकी बिजनेस पर, उसके टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट पे, उसको हाउ टू मेक इट ए बेटर फ्यूल, इजी यूजेबल फ्यूल इन द कंट्री, और उसको कैसे आप इंटरनेशनली इंटीग्रेट कर सकते हैं इस बिज़नेस को. इस आस्पेक्ट पर दो हमारे अच्छे जो सीनियर प्रोफेशनल्स हैं गैस इंडस्ट्री में, वो बुक उन्होंने लिखी है. उस बुक को हमने यहाँ पे एक तरीके से लॉन्च किया है, विच इज़ वन ऑफ द बेस्ट बुक्स दैट आर अवेलेबल इन इंडिया इन दिस फील्ड. कंक्लेव है, किस तरीके से आप लोग देख रहे हैं कि आगे जो चीज़ें हैं वो किस तरीके से चेंजेस होंगी? एक्चुअली देर इज़ अ लॉट ऑफ डिस्कशन हिंदी में. अभी क्या है, बहुत डिस्कशंस हो रहे हैं अबाउट ट्रांसिशन ऑयल एंड गैस से, कोल से टू क्लीनर एनर्जी. तो वो क्या है, बहुत बात हो रही है, लेकिन ग्राउंड पे जो काम होना है, द कंपनीज हैव टू डू इट. तो उसके लिए क्या है, व्हाट आर द रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऑफ बहुत सारे कंपनीज अभी आए हैं in generating clean energy and also transition from the conventional fossil fuels. तो इसके लिए क्या रास्ता है, कैसे करना है? अगर हमको 2070 से पहले ये जो टारगेट्स जो हैं अचीव करना है, तो किस तरीके का जो काम तेज़ी से करना है, वो सब डिस्कस करने के लिए ये सब कॉन्फ्रेंसेस जो हैं बहुत काम आते हैं. एंड ये क्या है, ये एक प्लेटफॉर्म भी देता है कि कई सारे कंपनीज हैं यहाँ जो आपस में डिस्कस कर सकते हैं, और सारे जो पैनल में जो एक्सपर्ट्स बैठे हैं वो अपना राय बताते हैं, अपना व्यूज़ बताते हैं, सो दैट इसको लेके आगे काम एक क्लियर कट चार्ट में आगे का काम प्लान हो सकता है. तो सर, देखा जाए तो व्हीकल के साथ साथ इंडस्ट्रियल एरिया है वो भी चेंज हो रहे हैं, कि जिस तरीके से गैस का यूजेस हो, चाहे ऑयल को लेकर हो. अब आगे किस तरीके से देखते हैं कि जो व्हीकल है, क्योंकि इलेक्ट्रिक व्हीकल तो आएगी, इसके अलावा किस चीज़ में देखते चेंजेस होने चाहिए? सी, आजकल अभी क्या है, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स तो आगे मार्केट में, और दे आर ऑल्सो ऑन द रोड्स. अभी जो द मॉर्निंग प्लेनरी सेशन में जो साहब लोगों ने बताया कि
the contribution of the electric vehicles and phasing out of the oil and gas in the transport section वो बहुत जल्दी करना है ताकि the impact on the environment बहुत कम हो। तो उसके लिए क्या है, इट इज़ नॉट ओनली द फेजिंग आउट ऑफ ऑयल एंड गैस या ऐसी ही बात नहीं है, बट देर इज़ ऑल्सो ए नीड फॉर डेवलपमेंट ऑफ बैटरी टेक्नोलॉजी। सो देर इज़ अ लॉट ऑफ अदर थिंग्स जो है ये साथ साथ चलने चाहिए। अदरवाइज़ क्या होगा, एक तरीके से हम आगे बढ़ेंगे और दूसरे लाइन पे पीछे रह जाएंगे। तो एक एक राउंड ऑल राउंड प्रोग्रेस होना चाहिए जिसके माध्यम से ये सब टारगेट्स हम अचीव कर पाएँ। सर लगता है कि जिस तरीके से सीएनजी और पीएनजी ने एक अपना मुकाम बनाया था, ये हर जगह पे हिंदुस्तान की हर जगह पर पहुंच चुके हैं, अब ये जो नई गैस जिस तरीके से ये आएगी वो किस तरीके से लोग चलेगी, क्या करेंगे? देखिए ये ट्रांसिशन एक बहुत बड़ी चीज़ है। पहले तो एक ज़माने में कोयला था, अभी भी कोयला है। नेक्स्ट थिंग अभी ऑयल एंड गैस चल रहा है, उसका जो क्लीनर इफेक्ट्स के लिए जो सीएनजी एलएनजी सब कुछ आ रहे हैं, तो इसका भी एक कमिंग नेक्स्ट 2-3 डिकेड्स तक ये चलेगा ही चलेगा। तो लेकिन साथ साथ में हाउ टू कम्प्लीटली गो एंड ट्रांसिशन फ्रॉम दीज सॉर्ट ऑफ एनर्जी सोर्सेज टू कम्प्लीटली रिन्यूएबल ग्रीन एनर्जी जो बोलते हैं, उसमें जाने के लिए आपको टाइम भी चाहिए। सो दिस इज़ व्हाट वी कॉल एज ट्रांसिशन। द ट्रांसिशन को बहुत स्मूथ रखना चाहिए, अदरवाइज देयर विल बी अ डिसरप्शन इन द एंटायर इकोनॉमी। वो सारे जो है ना लाइक द व्हीकल मैन्युफैक्चरिंग, बैटरी मैन्युफैक्चरिंग एंड द अल्टीमेट एंड यूजर सेफ्टी, एवरीथिंग को नज़र में रखे। ये क्या है, इट्स अ बिग साइकिल। ये एक दिन में 2 दिन में तो नहीं होगा। तो ये तो इट विल टेक एटलीस्ट अनदर 10 to 20-30 ईयर्स। मेरे हिसाब से 2070 तक हम ये अगर अचीव कर सकते हैं वो बहुत बड़ी बात है। तो उसके लिए बहुत काम करना पड़ता है। तो इसीलिए ये इस टाइप का जो कॉन्फ्रेंस जो चल रहे हैं बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत मायने रखते हैं।